एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने इतनी ब्यूटीफुल फैमिली हमारे को एज अ गिफ्ट हमारे को गुरुजी ने दी। एंड अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। एंड संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जिस तरीके से संगत जी हमारा इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है वर्ल्ड वाइड। Everybody is connected with all the sangat and can see the darbars all over the world. Such a beautiful family it is. So ये मालूम नहीं था कभी ऐसा भी होगा, but see the Guruji's magic ways to connect sangat all over the world, and his blessings flowing to each and every household, each and every individuals. So it is marvelous. And कैसे गुरुजी ने हमें सबको शिव जी के से कनेक्ट कराया एंड रियलाइज कराया हमें कि ही इज हिमसेल्फ महादेव, महाशिव जी. So it is a beautiful feeling. So now I'll start my journey with Guruji. Sangat ji, am I audible properly? You can listen to me, is it or no? Hanji uncle, you're clearly audible. Thank you. Hanji, thank you. So Sangat ji, my journey started way back in 2007, just before Guruji's Mahasamadhi in about February. I had a chance to meet Guruji through my younger brother. And rather usse bhi pehle, long time back, in 95 96, Guruji ki leela hai ki kaise I met Sudha auntie's daughter Shivani in a computer course. I joined for a 6 months course in NIIT SouthX, and Shivani was my computer partner that time. And tab unhone bataya ki we just shifted to Empire State from Vasant Kunj, and we have a guru from Jalandhar, and he comes to Delhi for his blessings, and we hold satsangs. So that time I was just like a friend. We were used to attend classes, and sometimes I used to come to Empire State also. But that was before the Guruji's gaddi was started. So that was, I think, 95 96 ki baat thi. So I met Amma there, and I met Sudha auntie also. So that time they were renovating their place at Empire State. And then they told me Shivani was supposed to migrate to US for their settlement. The whole family were migrated. So Sudha auntie to aati jati rahi thi yahan par, travel she used to do. So Shivani used to tell me you must come to Guruji. And he started his gaddi at Empire State. So बार होती थी, she used to tell me. But वही है ना कि जब टाइम आता है ना, जब बुलावा आता है गुरुजी का, जब गुरुजी एडमिशन करते हैं, क्योंकि 96 से 2007 I didn't go to Empire State as Shivani suggested me, and rather didn't go क्या, वो गुरुजी की ही अलाउंस नहीं थी, मुझे एडमिशन गुरुजी ने नहीं दी. वी फील कि हम जाते हैं, बट हम कभी नहीं जाते जब तक गॉड की मर्सी या गॉड की सिंपैथी हमारे ऊपर नहीं होती. वी कैनॉट एंटर हिज श्राइन, वी कैनॉट इवन टेक हिज दर्शंस. आई विल गिव यू ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स जो मैंने इतने सालों में लर्न किया गुरुजी के बारे में. ग्रेजुअली मैं भगत बना गुरुजी का. स्टार्टिंग में तो आई वाज जस्ट attending, but I'll tell you, clarify so many things. So then what happened ki 96 से 2007 was totally a bad period of my life. I suffered huge financial losses, property losses, my business losses were there. I lost my relationship, I lost family, friends. बहुत चीज़ें मैंने लूज की 96 से 2007 तक. इस ड्यूरेशन में शिवानी यूज्ड टू टेल मी कि आप जाइए, बट आई नेवर बॉदर्ड. वही मैंने कहा ना, अपने अहंकार और ईगो में बंदा रहता है कि हम किसी ऐसे गुरु को नहीं जानते और मानते नहीं हैं. एंड रादर पुट इट राइट वे कि गुरुजी ने ही मुझे नहीं दी एडमिशन फॉर हिज मर्सी एंड ब्लेसिंग्स. क्योंकि होता है ना कि वी नीड टू बैलेंस आउट आवर पुराने बैड कर्मास और इस जन्म के बैड कर्मास. वी नीड टू
बैलेंस इट आउट। तो वो मेरी सफरिंग वाज मैंडेटरी फॉर दिस लाइफ, बिकॉज वो जो 10 साल का पीरियड था वो जितना पेनफुल और एगनी वाला था, वो दैट मेड मी यू नो वो जो फाउंडेशन पीरियड था यंग डेज का, वो मेरा totally waste हो गया, और it had to happen in my destiny. So now when in 2007 my younger brother used to go uh, in February, तो मैंने I was in sciatica, I also had that sciatica health issue also. sciatica problem थी, फिजियोथेरेपी में काफ़ी करा रहा था 3-4 महीने से, so वो उससे भी आराम नहीं आ रहा था. I had a deep pain from the spine till my left leg. सो देखा कि मेरा छोटा ब्रदर और मम्मी यूज्ड टू स्टार्ट गोइंग टू गुरुजी, तो मैं उनको एक दिन वैसे ही रैंडमली मैंने पूछा मदर को कि आप कहाँ आजकल जा रहे हो, आई हैव बीन सीइंग यू 3-4 दिन से आप काफ़ी रेगुलर जा रहे हो कहीं, रादर 3-4 दिन नहीं 3-4 हफ्तों से. सो देन माय ब्रदर टोल्ड मी कि हाँ, एक गुरुजी हैं एम्पायर स्टेट में, और वो मतलब ही इज नॉट दैट एस्ट्रोलॉजी टाइप की वो आप कुंडली पढ़वाओ और दे ही विल सजेस्ट स्टोन्स, ही आप जस्ट उनकी ब्लेसिंग्स लो, और वहाँ पर शबद गुरबानी चलेगी, लंगर होगा, एंड यू जस्ट कम बैक. If he wants to talk, he will talk to you. Otherwise, you just seek his blessings. So then I said कि चलो, I was in deep problem. So मैंने कहा चलो चलते हैं. So just generally एक होता है ना कि जा रहे हैं, मॉम और ब्रदर जा रहे हैं, सिस्टर also was going. So मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ. So one fine day, I think was on Sunday, February 2007 की बात है. सो बस ट्रैवल करते हुए कार में आई आस्क्ड हिम कि ये कुछ गुरुजी के बारे में बताओ, कहाँ पर हैं. सो देन ही टोल्ड मी एम्पायर स्टेट में बैठते हैं. देन आई रिकॉल्ड कि देन आई टोल्ड हिम वन आई आल्सो माय वन ऑफ माय फ्रेंड्स गुरु इज आल्सो देयर. सो वो भी वहीं पर ही हैं गुरुजी, एम्पायर स्टेट में ही बैठते हैं. तो क्या ये सेम तो नहीं है गुरुजी, इज इट सेम? सो ही सेड कि आई डोंट नो, मेरे को तो पता नहीं, बट वहाँ गुरुजी एक ही हैं, दो तो है नहीं. सो मैंने कहा कि बाय एनी चांस उनके घर के आगे अहुजास तो नहीं लिखा हुआ? सो ही सेड या अहुजास तो लिखा हुआ है. तो मैंने कहा ओह माय गॉड, दिस इज द सेम गुरु व्हिच शिवानी वाज टेलिंग मी सो मेनी टाइम्स, एंड आई कुड नॉट गो. सो मुझे लगा कि ये तो सेम ही गुरुजी के पास जा रहा हूँ मैं. तो आई वाज एक्साइटेड एंड आई वाज ऑब्वियसली कंफ्यूज्ड आल्सो कि क्या हो रहा है. सो गो विद द फ्लो टाइप्स में गया, एंड व्हेन वी entered the place Empire State में, then I saw Guruji sitting on the sideboard next to the kitchen. और इतने मतलब गुरुजी young, he was so young and so good looking, जैसे मुझे लगा कि ये तो इतने young गुरु हैं. सो हम वहाँ पर नीचे बैठे. इट was such a beautiful organized place, pin drop silence. फिर आई थिंक सेवादार थे वहाँ पर, जोशी अंकल या सिंगला अंकल. देन ही टोल्ड अस कि यहाँ पर आप बैठ जाइए, और पिन ड्रॉप साइलेंस, शब्द चल रहे हैं, कीर्तन चल रहा है. अमेजिंग, वेरी वेरी पीसफुल, वेरी इंचांटिंग, मैजिकल. तो मैं वहाँ बैठ गया एंड गुरुजी को मैं देखने लगा. मैंने कहा ये तो गुरुजी बड़े यंग हैं, शिवानी के गुरु तो बड़े यंग हैं. मुझे लगा कि कोई जैसे होता है ना साधु संत टाइप होंगे. सो बस चाय प्रसाद आई, बैठे रहे. ब्रदर भी था, आई थिंक शायद ब्रदर के साथ ही गया था, मदर नहीं थी उस दिन. सो बैठे रहे. देन आफ्टर सम टाइम गुरुजी वेंट टू हिज रूम, एंड जब वो बाहर निकले, ही वाज इन चोला, हिज लाइक दैट द बिग गाउन यूज्ड टू वेयर. सो देन मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गई फ्रॉम अ यंग गुरु टू अ एंजल और अ गॉड लाइक. मतलब मेरे तो होश उड़ गए. मैंने कहा ये तो गुरुजी इज सच अमेजिंग ऑरा ही हैज, और द स्टाइल, द वे ही वॉक टू हिज चेयर, दैट वाज मतलब दैट वाज अ फीलिंग कि इतना अमेजिंग स्टाइल से गुरुजी यूज्ड टू वॉक और बैठे यार. पूरा गुरुजी ने एक गॉड का स्टेचर का वो एक होता है ना रूप चेंज कर लिया. रूप बदल गया, बिल्कुल बदल गया गुरुजी का, फ्रॉम अ यंग गुरु टू अ गॉड लाइक सेंटली पर्सन, एंजल. अच्छा, और उसके थोड़े टाइम बाद गुरुजी की इतनी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस आती थी पूरे दरबार में. सो आई कुड फील अमेजिंग फ्रेग्रेंस, बिल्कुल ही मतलब चेंज हो गया ऑरा.
सो मैंने कहा ये तो बड़ा enchanting और मैजिकल है, यहाँ तो आई मस्ट कम, आई हैव बीन मिसिंग सिंस 10 years। और देन आई मन ही मन रिग्रेट करने लगा कि 10 साल मैं नहीं आ पाया। सो अब चलो एनीवे, अब गुरुजी ने बुला लिया मेरे को अपनी शरण में। सो आई गॉट एक्साइटेड। सो देन उसके बाद लंगर हुआ एंड बस आज्ञा लेके हम चले गए। सो आई थिंक नेक्स्ट संडे ऑल्सो आई केम, एंड दैट टाइम मेरे छोटे ब्रदर कुछ उसको इशू आ रहा था अपनी वाइफ के साथ, तो वो कह रहा था कि मैं गुरुजी को फोटो दिखाऊंगा आज ना, कोशिश करके। तो मैंने कहा ऐसे अलाउड है फोटो दिखाना, ऐसे गुरुजी करेंगे? कह रहे तू चलना, देखते हैं, लेट्स ट्राई। सो मैं चले उनके साथ चले गया, ब्रदर के साथ। और जब गया तो विद हिम गुरुजी, तो उसने कुछ फोटो दिखाई। सो देन गुरुजी ने पता नहीं समथिंग उन्होंने कहा। देन ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू देन ही इंट्रोड्यूस्ड मी। सो उसने कहा गुरुजी को कि गुरुजी ये ना मेरा बड़ा ब्रदर है। तेरा बड़ा भाई है? हाँ जी गुरुजी। ये गुरुजी शिवानी के साथ पढ़ता था। की नाम है तेरा? मैंने कहा गुरुजी रोहित। तू शिवानी दे नाल पढ़दा सी? अच्छा, कॉलेज विच? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, वो कंप्यूटर। उदय माँ तो आई हुई है? तो देन गुरुजी सेड कि किसी सेवादार को ऑन द राइट साइड, आई थिंक सिंगला, आई डोंट नो, सम सेवादार। सो ही सेड सुधा नु बुलाई जा। तो देन सुधा आंटी वॉक फ्रॉम द दिस थिंग किचन एंड शी स्टार्टेड लुकिंग एट मी। मिले हुए तो थे बहुत पहले, बट 10 साल हो गए थे इस बात को। तो शी स्टार्टेड लुकिंग एट मी। तो गुरुजी ने कहा ए शिवानी दे नाल पढ़दा सी? तो देन आई थिंक गुरुजी ने ना हमें थोड़ा साइड कर दिया कि हाँ जाके तुम राइट में बैठ के यू कैन टॉक। फिर और भी संगत आने लगी एंड गुरुजी गॉट बिजी। सो साथ में मैं वहाँ बैठ के आंटी से बात करने लग गया। देन आंटी रिकॉर्ड कि हाँ बेटा, हाँ आप आते थे GK1 से, और हाँ हाँ सब ठीक है वो। सो वी स्टार्टेड टॉकिंग। So that was the basically that was the first communication with Guruji, with and he introduced me to Sudha aunty। तो ऐसे करके हुआ। So that time यही हुआ। Then we had langar and then we went away। So उसके एक और दो संडे शायद मैं 4-5 बारी और आया। So I felt nice and सुधा आंटी भी मिलती थी। We used to जय गुरुजी ऐसे करके। So nothing happened more than that। So I was going because I felt very nice। मुझे अपनापन बड़ा लगा because Sudha aunty, Shivani I used to know earlier। Then brother भी आ रहा था, तो I used to feel nice। गुरुजी के साथ भी अच्छा लगा, very positive feeling। So उस टाइम तक मेरे को ऐसा कुछ वो नहीं हुआ कि I felt कि he is God or a guru। आस्ते आस्ते gradually I built that, I got the faith। but अच्छा लगा ना, very enchanting, very very attraction बहुत हुई दरबार की। So somehow हम February March में गए, only Sundays को ही जाते थे। and April में I think April and May I couldn't go। I don't know what happened, I can't recall। I didn't go। So एक बारी मुझे 31st May और 1st जून में मेरे को मैसेज आता है फेसबुक में शिवानी का कि I hope you know that गुरुजी has left us and she was shattered। So मैंने ब्रदर को बोला यार ये क्या हुआ है, गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी नहीं रहे, ये कैसे हो गया? तो उसने कहा मेरे को भी नहीं पता, आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग। सो फिर हम मतलब काफी टेकन अबैक हो गए कि मैंने भी गुरुजी को कहा कि अभी तो मैंने आना शुरू किया और आप तो अब हो ही नहीं। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या करें? वी वर गॉट पजल्ड। सो देन पता चला कि थोड़े महीने बाद एम्पायर स्टेट खुलता था थोड़ा बहुत। तब तक मैं बड़े मंदिर नहीं गया था, मेरा छोटा भाई जा चुका था। आई थिंक ही वेंट फॉर महाशिवरात्रि बिफोर द समाधि, बट मैं कभी बड़े मंदिर कभी नहीं गया। तो यहीं एम्पायर स्टेट से ही मुझे मैं गया। आई थिंक 3-4 महीने बाद, मे बी आई थिंक सितंबर अक्टूबर की बात होगी। तो हम थोड़ा सा बीच बीच में संडेज को जाने लगे। सो इट वाज अ वेरी सैड एनवायरनमेंट देयर। काफ़ी बहुत ज़्यादा सैडनेस थी। ऑब्वियसली संगत had missed गुरुजी had left। तो जो पुरानी संगत थी, जो बहुत ज़्यादा आ रहे थे इतने सालों से अटैच थे, तो बहुत सैडनेस थी। आई ऑल्सो फेल्ट कि यार यहाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट सीन हो गया है, गुरुजी इज मिसिंग एंड सो समहाउ
गए, 2-3 बारी गए। उसके बाद वन संडे संगत जी, अमेजिंग थिंग हैपेंड, मी माय ब्रदर सिस्टर वेंट, और जब हम वापस आ रहे थे, जो मेन गेट, जो स्टील का मेन एंट्रेंस गेट है एम्पायर स्टेट का, वहां पर व्हाइल वी वर गोइंग आउट, वी रिसीव्ड अ गश ऑफ फ्रेग्रेंस। गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, जो रोज फ्रेग्रेंस होती थी। सो मैंने भाई को कहा, मैंने कहा ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है यार यहाँ से, कैन यू फील इट? तो हाँ कह रहे, हाँ। वहीं हम खड़े हो गए, बिल्कुल वंडर स्ट्रक। गेट जहाँ गार्ड्स को खड़े बैठते हैं, उसके थोड़ा सा 50 मीटर दूर। सिस्टर को भी आए, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, ये तो मैजिक है, ये कैसे हो सकता है? गुरुजी की तो अंदर आती थी मंदिर में, यहाँ कैसे आ गई? सो फिर वही हमने डिस्कस किया, आई रियलाइज्ड कि ये तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ, आया करो, यू नो जस्ट टू शो अस एंड सपोर्ट अस कि आया करो, मैं यहीं हूँ। क्योंकि संगत इतनी स्कैटर्ड हो गई थी, इतनी घबरा गई थी कि समझ नहीं आ रही थी कि बिल्कुल हम ऑर्फन हो गए हैं, क्या होगा आगे। बिल्कुल ही जो होता है ना, शैटर्ड हो रहा था वहां पर। सो बट गुरुजी, मैसेज इस फ्रेग्रेंस से मुझे आया कि गुरुजी इज समथिंग, गुरुजी कहीं ना कहीं गॉड है। गुरुजी ने फ्रेग्रेंस भेजी है अपनी एज अ मैसेज कि आई मस्ट कंटिन्यू द जर्नी विद गुरुजी। So then I started going to बड़े मंदिर on Mondays. उस टाइम अर्ली मॉर्निंग हम, मुझे आई रिमेम्बर, जाते थे 6, 6:30, कभी शायद सेवा थी ब्रदर की, तो वो मेरे को लेके जाता था वहाँ। हम सुबह सुबह आरती करते थे, 5-6 संगत और थी। सो अर्ली मॉर्निंग हम जाते थे। देन माय ब्रदर वेंट इन हिज ओन वेज, कहीं वो काम वाम में बिजी हो गया। देन आई स्टार्टेड गोइंग ऑन मंडेज, क्योंकि मंडेज ओपन होता था सेवा के लिए भी, एंड यू कुड टेक द दर्शन ऑफ बड़े मंदिर। सो उसमें मैंने आई थिंक 2009-10 के आसपास मैं बड़े मंदिर काफ़ी रेगुलर हो गया मंडेज को, एंड मुझे अच्छा लगने लगा कि नहीं नहीं, गुरुजी तो हैं, अभी यहीं हैं गुरुजी, तो डेफिनेटली ब्लेस करेंगे। और इन द मीन टाइम शाटे का पेन वाज डिसअपेयर्ड। एक्चुअली इट हैड डिसअपेयर्ड बहुत पहले ही, 6 मंथ्स के अंदर ही डिसअपेयर हो गई थी, और मुझे पता नहीं चला ग्रेजुअली कि वो शाटे का जो पेन जिसकी वजह से मुझे आया था, मैं वो बिल्कुल ही डिसअपेयर हो गई। जबकि फिजियोथेरेपी मैंने बड़ी कराई थी, बट वो ठीक नहीं होता था मैं ट्रीटमेंट से। बट गुरुजी के जो मैं फरवरी से मार्च में गया, और उसके बाद बड़े मंदिर भी गया 2007 में, उसी टाइम वो ठीक हो गई। सो मुझे ये भी विश्वास था कि गुरुजी इज समथिंग, गुरुजी ने बड़ा मंदिर बनाया है, गुरुजी ने मुझे ठीक किया है, उनकी फ्रेग्रेंस आती है, इतनी संगत है। सो डेफिनेटली गुरुजी इज गॉड। तो फिर एक दिन मुझे याद है 2008-9 में जब मैं बड़े मंदिर जाता था, मुझे सेवा भी, संगत का बहुत प्यार मिला मुझे, बहुत गुरु संगत ने मेरे को सपोर्ट किया, हेल्प की, सेवा मुझे मिल गई। कभी शिव जी की मूर्ति की क्लीनिंग की सेवा, कभी समाधि की सेवा, जस्ट बाय चांस, इन द सेंस कि गुरुजी ब्लेस्ड मी रादर फॉर द सेवा थ्रू संगत। सो संगत ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेरे को अपॉर्चुनिटीज दी कि मैं आऊं, आगे बढ़कर सेवा करूं, जबकि आई डिडंट नो एनीबॉडी। यू नो सो फिर उसके बाद वन फाइन डे इन 2008-9 इन ऑन मंडे, मैंने देखा कि जो म्यूजियम है अभी वहां पर कुछ ग्रुप ऑफ संगत बैठे हैं, दे आर रीडिंग समथिंग। सो देन आई सॉ कुकी आंटी, जो बड़े मंदिर में जो शिव पुराण पढ़ती हैं, शी वॉज रीडिंग शिव पुराण एंड संगत वर लिसनिंग। सो मैं भी वहां बैठ गया, मैंने कहा यार ये तो अमेजिंग है, कुछ पाठ चल रहा है, लेट मी ऑल्सो गेट इन टू इट। सो उसमें काफी आनंद आया, और जब वो अध्याय पूरा हुआ तो देन आई आस्क्ड, आई थिंक जोशी अंकल थे, कि अंकल ये क्या है बुक, अंकल मुझे भी बताइए। तो देन ही टोल्ड मी कि दिस इज शिव पुराण विच गुरुजी ब्लेस्ड एंड टोल्ड संगत टू रीड। तो आप प्लीज ये आप पढ़िए, ये शिव पुराण जरूर पढ़िए। सो देन आई वेंट बैक होम एंड देन आई थॉट कि यार ये शिव पुराण तो इट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो आई गॉट अट्रैक्टेड टू इट, एंड मेरे को कहीं से आई थिंक यंगर ब्रदर ने, या पता नहीं हमारे मंदिर में ही थी, आई डोंट रिमेम्बर कि मुझे शिव पुराण एक्चुअली मिली कहाँ से। सो आई स्टार्टेड रीडिंग शिव पुराण। सो जब शिव पुराण मैंने पढ़ना शुरू की, अबाउट 2009-10 की बात है,
तो उसमें मेरे को समझ तो नहीं आई, बट मुझे ये समझ आ गई कि गुरुजी तो मतलब मुझे ये लगा उस टाइम कि गुरुजी इज आर्डेंट डिवोटी ऑफ शिव जी। जैसे उन्होंने शिवलिंग इतना बड़ा बनाया बड़े मंदिर में, और शिव जी की मूर्ति है और हम आरती करते हैं शिव जी की सत्संग में, तो गुरुजी तो शिव जी के बहुत जबरदस्त लवर हैं, भक्त हैं। एंड फिर आस्ते आस्ते मुझे रियलाइज हुआ शिव पुराण में, जैसे उन्होंने कहा शिव जी ने कि मैं गुरु के रूप धारण करके आऊंगा धरती में लोगों का कल्याण करने। तो मुझे शिव पुराण से बहुत ज्ञान मिला, और मुझे तब समझ आई 2009-10 में कि गुरुजी इज शिव जी हिमसेल्फ। ही इज द रीइंकार्नेट, ही इज हिमसेल्फ शिव जी। बिकॉज इतना बड़ा ह्यूज शिवलिंग और शिव जी की भक्ति इतनी ज्यादा मंदिर में होती है, तो ही इज हिमसेल्फ इज शिव जी। सो फिर मैं काफी ज्यादा मैंने भक्ति मेरी बढ़ गई है। एंड देन आई स्टार्टेड आल्सो, बिकॉज शिव पुराण पढ़ते थे तो शिवलिंग का उसमें बड़ा महिमा है कि शिवलिंग की पूजा करने का विधि है। तो आई यूज्ड टू गो टू माय दिस थिंग नियर बाय टेंपल टू पुट शिवलिंग में दूध एंड जल एवरी डे। सो काफी मैंने ऐसे किया, और देन आई स्टार्टेड गोइंग ऑन मंडेज। सो मुझे काफी मेरी शिव जी और गुरु जी के ऊपर भक्ति जागी। एंड यू नो काफी अच्छा लगने लगा। देन आई रेड वंस, देन आई अगेन स्टार्टेड रीडिंग। फर्स्ट में तो मुझे समझ नहीं आई, बट हाँ एक बड़ी अमेजिंग चीज हुई। आई गॉट अट्रैक्टेड टू अ मंत्रा इन द फर्स्ट रेड ऑफ शिव पुराण। सो वो मुझे मंत्रा, मैंने कहा ये ओम नमः शिवाय तो है मंत्रा, बट एक मुझे पेक्यूलर मंत्रा, मे बी इट वाज गुरु जी का मैसेज था कि ये मंत्र करा कर। सो वो मंत्रा मैं करने लगा एवरी मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा ड्यूरिंग रीडिंग ऑफ शिव पुराण। सो मंत्रा मैं करने लगा, एंड एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू चांट, और बिल्कुल मगन हो गया मंत्रा में, इन लव विद द मंत्र। सो वो किया। देन सेकंड दोबारा शुरू की, मुझे बड़ा अट्रैक्शन हुई शिव पुराण से। मैंने कहा ये तो अमेजिंग कोई मुझे पाठ मिल गया है, जबकि आई एम वेरी पुअर इन एकेडमिक्स। आई वाज वेरी एवरेज स्टूडेंट एंड नेवर रेड बुक्स, बिकॉज आई वाज वेरी a very distracted soul kind of a person. Thoughts मेरी left right इधर उधर जाती हैं, तो concentration नहीं कर पाता। सो बट जो ये शिव पुराण मुझे बड़े मंदिर से मेरे को पता चला राज की गुरुजी कहते थे, तो उससे मुझे इतनी अट्रैक्शन हुई। सो आई रेड, जबकि ठेठ हिंदी है एंड बीच में संस्कृत भी है, बट मुझे पढ़ा मैं। देन मंत्र मुझे मिला, सो मुझे और डीपर लगा कि ये तो गुरुजी कुछ ब्लेस कर रहे हैं, हिडन ब्लेसिंग्स हैं इसमें। सो सेकंड टाइम भी मैं पढ़ा, सेकंड टाइम मुझे कुछ समझ आई कि हाँ ये ऐसे है, ऐसे है, कैसे सृष्टि की रचना होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश, पार्वती जी, सती जी, सारी बड़ी मुझे पता चल गई चीजें, ज्ञान। सो आई वाज एंजॉयिंग दैट जर्नी ऑफ शिव पुराण एंड गोइंग टू मंडेज में और जाने लगा। और मुझे संगत के सत्संग शेयरिंग का बड़ा मुझे हुआ कि मुझे शेयरिंग सुननी है दिल से, बड़ा अच्छा लगा। सो मंडेज को मैं जाता था, एंड आई यूज्ड टू मेट मेट मेनी संगत्स। वहाँ पर अनीता कुमार आंटी और बहुत अच्छी संगत आती थी, अपना शेयरिंग करते थे स्मॉल ग्रुप्स में मंडेज को। सो बड़ा अच्छा लगता था, हेवनली हेवनली। सो आई यूज्ड टू गो, एंड देन संडेज को इवनिंग में भी मैं जाता था। तब तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंगर होता था शाम को, तो ओनली संडेज सिंस बिगनिंग आई वाज गोइंग टू ऑन संडेज ओनली। सो one given Sunday in 2011, I remember I told Guruji कि गुरुजी मेरे को ना आपने मेरे को सेवा करनी है, गुरुजी कुछ ना मेरे को सेवा करनी है। बिकॉज उस टाइम ना नई संगत काफी बढ़ गई थी, तो जो पुरानी संगत थी जो आ रही थी वो दे बिकेम सेवादार्स। सो काफी सेवादार्स उनको चाहिए थे, बट मैं मेरे को सेवा का भी मौका नहीं मिला। सो मैंने सेवा शुरू करी, सॉरी आई मीन सेवा का अरदास किया संडे को कि गुरुजी मुझे भी आप कोई ना अपने मंदिर में सेवा में लगा दो, आई वुड लाइक टू डू इट। तो आप संगत जी मानोगे नहीं, एक संडे को मैंने कहा नेक्स्ट संडे, क्योंकि आई वाज गोइंग ऑन संडेज वेरी रेगुलरली, तो नेक्स्ट संडे ही जब आप मैं जल प्रसाद पीने गया, तो वहां पर विलायती राम अंकल हैं, कोऑर्डिनेटर थे उस टाइम, 2010-11 की बात है ये। तो उन्होंने मेरे को, जब मैंने जल प्रसाद पिया, तो उन्होंने कहा मेरे को कि अंकल आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा बताइए अंकल, आपने सेवा करनी है? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल अंकल, बिल्कुल करनी है।
So I got excited and I was surprised कि मेरे को तो immediate सेवा मिल गई. So he told me that आप ना यहाँ पर जो संगत आएंगे जल प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो जो वो पी के ग्लास देंगे, एम्प्टी ग्लासेस आपने होल्ड करने हैं और फिर उसके बाद आगे अंदर आपने किचन में देना है आंटीज को ना, जो अंदर वॉश कर रही हैं. सो मैंने कहा ठीक है. सो मैं वहां पर लग गया. आई डिड सेवा फॉर आई थिंक कपल ऑफ मे बी हाफ एन आवर और 1 आवर. सो मैं मनोमन सोच रहा हूँ गुरुजी ये तो आपने कमाल कर दिया, साक्षात आपने दिखा दिया चमत्कार अपना कि मैंने एक ही हफ्ते पहले तो आपको बोला है और यहाँ तो मतलब मेरे को पता ही नहीं किसको बोलना है, अप्रोच करना है सेवा के लिए. सो आपने तो ऑटोमेटिकली, उन्होंने ही मेरे को सेवादार ओनली अप्रोच्ड मी टू डू सेवा. तो ये तो गुरुजी अमेजिंग. सो आई वाज सो हैप्पी. सो 2011 ये बात है आई थिंक अप्रैल मई की. सो उन दिनों एक्चुअली गुरुजी से मैं सीख भी कर रहा था एक पार्टनर. आई वाज लुकिंग फॉर अ पार्टनर आल्सो कि गुरुजी मेरे को कुछ मतलब कोई आप लाइफ पार्टनर अपने मंदिर में ही अगर मिल जाए या कोई अच्छी लड़की आप मेरे को मिलवा दो अपने मंदिर की तो बहुत अच्छा होगा. सो मनोमन में अरदास करता था शिव जी को भी. मैं मंदिर में जाता था वहाँ शिवलिंग में दूध चढ़ाने. तो मेरे माइंड में 1-1.5 साल से था ये कि कोई है ना गुरुजी पार्टनर दिला दें. और कुछ मैं संगत से मेरे को बड़ा वो था कि मुझे ना कुंडली मिलवानी है. बड़ा वो था, मेरे को क्रेज था कि जी कुंडली मिलवा के करेंगे. बिकॉज आई हैड लॉस्ट वन रिलेशनशिप अर्लियर बिफोर कमिंग टू गुरुजी. सो मैंने कहा कि नहीं मेरे को ना कुंडली मिलवानी है इस टाइम. सो आई मेट फ्यू संगत्स. बस वही है कि कुंडली नहीं मिली, ऐसे कुछ हो गया कैजुअल वे में ना सारा. नहीं आगे किसी से बात बनी. तो मुझे नहीं पता था कि ये सेवा में ही गुरुजी मेरे को लाइफ पार्टनर भी मिलवा देंगे. तो व्हाट हैपेंड, जब मैं सेवा आगे करता था तो 3-4 हफ्ते गया मैं. उसके बाद विलायती राम अंकल ने कहा अंकल ना आप ना अंदर सेवा करो. सो अंदर आंटीज ही होती थी मोस्टली, ऑल एज ग्रुप की किड्स, मतलब यंग 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 आंटीज एंड मदर्स उनकी. तो काफी आंटीज थी. तो उन्होंने पता नहीं मेरे को एक दिन कहा कि आप ना अंकल अंदर सेवा करो, आपकी अंदर जरूरत है, आज कम है हमारे पास सेवादार. तो मैं अंदर चले गया. सो आई यूज्ड टू, जग की सेवा लग गई मुझे. जग से ग्लास में पानी डालना है एंड माय वाइफ जो बाद में बनी निधि आंटी, वो ग्लासेस आगे फॉरवर्ड करती थी. तो ऐसे हमारी सेवा लग गई. तो देन सेवा लगी. तो जब हमारी सेवा लगी तो बहुत अच्छी सेवा हम करते रहे. तालमेल इतना अच्छा हुआ कि विलायती राम अंकल ने मुझे फिर आगे कभी नहीं लगाया सेवा में. वो कहते थे नहीं अंकल आपकी ना सेवा, जग की सेवा आप अच्छा कर रहे हो, लास्ट में भी अच्छा आप सारा क्लीन करके जाते हो, तो आप अब यही सेवा करो कंटिन्यू. तो वो आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी सेवा वो मतलब काफी टाइम तक चली. और जो लेफ्ट में मेरे आंटी निधि जो मेरी अब वाइफ हैं, वो भी साथ में सेवा करती थी. तो वो तो बहुत ही फास्ट थी. शी यूज्ड टू क्लीन वेरी वेल. तो उनका नाम रखा हुआ था राजधानी एक्सप्रेस बिकॉज वो शी वाज सो फास्ट इन ऑल दीज थिंग्स, क्लीनिंग एंड एवरीथिंग. तो मैं भी पेस नहीं मैच कर पाता था जग डालने का. वो फटाफट मतलब स्लो हो जाता था. सो शी वाज सो फास्ट. अभी भी कोई घर आता है तो कहते हैं ये तो मतलब कमाल की लेडी है, बहुत ही सफाई पसंद है. सो एनीवे, सो देन आई आई यूज्ड टू डू सत्संग एट माय प्लेस. तो मैंने एक दिन उनको कहा, नाम तो पता ही नहीं थे किसी के, सेवादार थे. तो मैंने कहा एक बारी कि आप मेरे में यहाँ सत्संग कर रहा हूँ, अगस्त की बात है शायद 2011 में, सो आप आएंगे. सो देन शी टोल्ड मी नहीं वी आर फ्रॉम हिमाचल, हम तो हिमाचल के हैं. उनकी मदर भी आती थी. तो हम तो अभी वहाँ पर जा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए वहाँ पर काम है, तो हम तो नहीं अटेंड कर पाएंगे अंकल. सो मैंने कहा ठीक है. सो दे डिडंट अटेंड द सत्संग इन अगस्त. एंड देन आई थिंक जब वो वापस आए 1 महीने बाद, तो देन निधि आंटी की मदर ने, जो मेरी अभी मदर इन लॉ हैं, उन्होंने कहा कि बेटा अपना एम्पायर स्टेट में हम गए नहीं, जब से गुरुजी की समाधि हुई है, कोई आपका है जो एम्पायर स्टेट में अगर हम दर्शन कर पाए. सो देन मैंने कहा आंटी जरूर, बिल्कुल आंटी, मैं आई विल स्पीक टू सुधा आंटी इफ शी अग्रीज एंड वी कैन टेक द दर्शन. सो मैं पूछ के आपको बता देता हूँ. सो वी एक्सचेंज नंबर्स एंड देन आई टोल्ड देम
सुधा आंटी को सॉरी मैंने कॉल किया कि आंटी एक हैं सेवादार हैं, संगत है, दे वांट टू सी गुरुजी's ब्लेसिंग्स, दर्शन करने हैं, सो कैन वी कम? सो देन सुधा आंटी सेड या नो प्रॉब्लम, आप आ जाइए। सो उनको मैं फिर लेके गया वहाँ पर एम्पायर स्टेट में। दिस इज़ अबाउट आई थिंक सितंबर की बात होगी 2011 में। वहाँ गया एंड वहाँ पर फिर दर्शन किए गुरुजी के। वी ऑल थ्री सैट, निधि एंड हर मदर एंड मी। फिर वहाँ पता नहीं वहाँ से कुछ ऐसा गुरुजी ने ब्लेस, ऑब्वियसली गुरुजी ने ब्लेस करना था उनको, आपस में हमारा लाइफ पार्टनर बनाना था। सो गुरुजी की ये लीला सारी चल रही थी कि कैसे मुझे वहाँ पर सेवा दिलाई, एंड देन एम्पायर स्टेट में उन्होंने कहा और सुधा आंटी ने फिर अलाउ किया, एंड देन वी वेंट टू यू नो एम्पायर स्टेट। और फिर वहाँ आके बाहर आई यूज्ड टू हैव इन माय कार गुरुजी's calendars and Guruji's books, lockets for सेवा, for distribution. सो मेरे पास थी, तो मैंने आंटी को कहा, मदर को कहा निधि की, कि आपको मेरे पास हैं गुरुजी की बुक एंड गुरुजी के स्वरूप, तो इफ यू वांट यू बताइए। तो देन शी सेड या आई वाज रादर लुकिंग फॉर इट, मैं ढूंढ रही थी, तो मैंने उनको फिर वो दिया गुरुजी के स्वरूप। सो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उनके मन में और मेरे मन में, ऐसी कोई बात आई कि मुझे लगा कि दीदी इज द राइट पर्सन फॉर मी एंड आई शुड टॉक टू हर अबाउट मैरिज। जबकि बहुत मुझे शर्म आई बिकॉज गुरुजी की संगत थी। आई थॉट कि यार ऐसे तो कैसे बात होगी, एंड माय पेरेंट्स वर वेरी ओल्ड, सो मुझे सारा खुद ही करना पड़ता था। सो देन मेरे को मैंने किसी तरह उनको अप्रोच किया, एंड देन वी गॉट द रोका फिक्स्ड in on 7th December 2011. So संगत आई, शिवानी, सुधा आंटी एंड देन शालिनी आंटी, फ्यू संगत केम एंड गुरुजी का दरबार लगा के गुरुजी के सामने हमने फिर रोका हुआ फिक्स किया हमने, गुरुजी का सत्संग किया, बहुत अच्छा लगा। आई वाज वेरी हैप्पी। और अप्रैल 2012 में वी गॉट मैरिड। बट उस 4-5 महीने में कुछ थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी बिकॉज हमारा एज ग्रुप सॉरी एज डिफरेंस काफ़ी है। वी आर फ्रॉम हिमाचल, वी आर फ्रॉम पंजाबी बैकग्राउंड, एंड काफ़ी डिफरेंसेस इन द सेंस कल्चरल डिफरेंसेस, कास्ट, हाइट डिफरेंस, शी इज दिस थिंग, तो काफ़ी था, तो कुछ दिक्कतें भी आई थी। सो देन पता नहीं गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करना था ऑब्वियसली, सो गुरुजी ने मेरी टॉयलेट सेवा लगा दी बिटवीन माय एंगेजमेंट टू मैरिज। सो मेरी टॉयलेट सेवा गुरुजी ने लगाई। देखो उस टाइम तो रियलाइज नहीं हुआ, बट ये गुरुजी की लीला है कि कैसे गुरुजी को गुरुजी सेवा लगाते हैं, ब्लेस करने के गुरुजी के तरीके हैं कि कैसे गुरुजी ने बैलेंस आउट करनी होती हैं चीजें। सो दिस इज हिज ओन मैजिकल वेज टू हील यू एंड ट्रीट यू। तो मैंने टॉयलेट सेवा यूज टू गो ऑन मंडेज विद वन ऑफ द संगत्स। मुझे वो पार्टनर मिल गया संगत, विक्रम वैद्यनाथ, तो उसके साथ हम करते थे टॉयलेट सेवा करा। ज़्यादा नहीं, 4-5 मंडेज ही करा, और उसके बाद एवरीथिंग वाज सेट अप फॉर द मैरिज, एंड देन वी गॉट मैरिड विद गुरुजी's ब्लेसिंग। संगत आई, बहुत अच्छा लगा, एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ एंड वेरी हैप्पी। So this is how Guruji blessed me with my life partner and seva of Jal Prasad, toilet seva. So बहुत अच्छा गुरुजी का मेरे को ये blessings मिली, so I wanted to share that. And then उसके बाद एक और चीज I've just missed out कि 2011 में जब I used to do सेवा, उस टाइम एक देवों के देव महादेव एपिसोड शुरू किए थे टीवी में, and then that also I used to watch. वो भी मैं देखता था, उसमें भी बहुत ज्ञान मुझे मिला, बड़ी अट्रैक्शन हुई शिव जी के साथ। और उसमें उसी दौरान मेरे को जब निधि आंटी मिली, तो हमारी भी अफेक्शन काफी ये देवों के देव महादेव से बढ़ी, बिकॉज उसमें ना रिलेशनशिप की बड़ी महत्व बताई है। जैसे शिव जी एंड पार्वती का जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ही ब्लिसफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल है, उससे काफी ज्ञान होता है। ये मस्ट वॉच है, जिससे पता चलता है कि आपके लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड की इंपॉर्टेंस क्या है, और हमारी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। बिकॉज सिंस बिगनिंग वी हैव सीन दिस मॉडर्न एज, वी हैव सीन आवर हाउसेज एंड आवर नेबर हाउसेज व्हाटएवर। सो वो
जो ज्ञान और जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो सीखने को मिली मेरे को, और जिस तरीके से हमें बिहेव करना है, जिस तरीके से हमें ट्रीट करना है अपनी वाइफ को या अपने पेरेंट्स को, ये ज्ञान बहुत मिला तो मेरे को उससे मेरे रिलेशनशिप काफी अच्छे हो गए। एंड निधि ऑल्सो गॉट कंफर्टेबल बिकॉज आई वॉज 15 ईयर्स ओल्डर टू हर। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड भी उसको इतना नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा एजेड आदमी से मैं शादी कर रही हूँ। शी वॉज हार्डली आई थिंक 23 दैट टाइम, आई वॉज 38 व्हेन आई गॉट मैरिड। सो वो भी एक बहुत बड़ी बात हुई है। दिस इज नॉट एन ईजी थिंग। सो इसी की वजह से हमें दिक्कत आई थी काफी बिफोर द मैरिज। सो एनीवे, सो आई वाज जस्ट शेयरिंग कि एक ये एपिसोड देखना देखना जरूरी है संगत के लिए। वी विल आल्सो शेयर दिस एपिसोड, देवों को देव महादेव। देन then I got married and I had a son and a daughter, और बहुत अच्छा लगा। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज आया लाइफ में इन 2018, जिससे मेरा गुरुजी ने वो ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला का सेवा और सत्संग अटेंड करवाना शुरू किया। दिस वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन गुरुजी's सरेंडरिंग मी टू गुरुजी। 2018 में we were selling our ancestral property since long. We were trying to sell it. So 2018 में we happened to get a buyer of the property. It is a huge property. So उसमें 2-3 partners और involved थे. We had 3 floors and basement ground floor. So हमने अपने floors की किसी एक पार्टी से बात की and we received some token money from that person in October 2018, just recently only. So हुआ क्या कि वो पार्टी, that buyer was not correct. मतलब वो ना उसका कुछ और ही माइंड था, तो नेगेटिव था बेसिकली। सो देन आई एंड माय फादर हैड साइंड एंड रिसीव्ड द मनी, थोड़ा सा टोकन मनी, बिकॉज मी एंड माय डैड वाज द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी। डैड हैड गिफ्टेड मी वन पोर्शन, सो दोनों के नाम से ही वो डील हो सकती थी। सो हुआ क्या कि ये बैड बायर बन गया एंड ही नेवर वांटेड टू एग्जीक्यूट द डील। वो चाह रहा था कि हमने आधे रेट में इनकी प्रॉपर्टी ग्रैब कर लेते हैं। सो हमें हो गई टेंशन। हमने कहा हमने इससे कुछ रिसीविंग ले ली, पैसे ले लिए, और अब आगे ये पैसे दे नहीं रहा और कह रहा है कि जी अब हम बेसमेंट ग्राउंड वालों से बात करेंगे, उसमें तो टाइम लगेगा और 3 महीने में रजिस्ट्री होती है नॉर्मली। एंड ही वाज एंडलेसली, वी वर कॉलिंग ब्रोकर एंड द बायर, ही वाज नॉट स्टॉपिंग आवर कॉल। तो मैंने कहा ये तो बड़ी डेंजरस बात हो गई, ना हम इधर के हैं ना उधर के, तो डिस्प्यूट हो गया हमारा प्रॉपर्टी में। इतनी मैसिव प्रॉपर्टी एंड माय ब्रदर सिस्टर एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व्ड। वो क्या बोलेंगे कि रोहित ने कहाँ फंसवा दिया हमें। सो देन आई क्राइड एंड देन आई सेड कि निधि को कि यार ये तो हम बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं, ये तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से निकालना पड़ेगा हमें। तो गुरुजी को हमने बड़ा प्रे किया कि गुरुजी ये तो क्या हो गया, हम तो आपको प्रे कर रहे थे कि प्रॉपर्टी बिके, और ये तो हम रादर डिस्प्यूट में आ गए हैं बिकॉज हम आगे भी किसी को नहीं बेच सकते और ये तो हमें ब्लैकमेल करेगा। सो देन माय वाइफ सजेस्टेड कि हम ना एक काम करते हैं, हम ना अमृत वेला में प्रेयर्स करते हैं, दैट इज द मोस्ट पावरफुल टाइम, 3 से 6। सो मैंने कहा 3 से 6 तो यार मैंने कभी नहीं सुना गुरुजी यार के सत्संग या तो 12 बजे होते हैं या 6 बजे होते हैं, ऐसा तो नहीं है। बट यस आई रिकॉल्ड कि शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए, उसका फल बहुत अधिक होता है, इट इज वेरी पावरफुल प्रेयर्स। सो देन आई अग्रीड एंड वी अगले दिन ही हमने स्टार्ट करना था 3 से 6 में बैठ के स्नान करके गुरुजी की पूजा। सो मेरे को मैसेज आता है शिल्पी आंटी का, एक संगत है, शी वाज इन हाउस खास दैट टाइम एंड शी इनवाइटेड मी फॉर अमृत वेला सत्संग। सो आई वाज शॉक्ड। मैंने अगर निधि को कहा, मैंने कहा यार ये तो अभी अभी तो बात हो रही है कल कि अमृत वेला करना है रात को, और ये तो आंटी ने ही हमें इनवाइट किया हुआ है ये अमृत वेला सत्संग के लिए। तो ये हाउ कम दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ये तो गुरुजी ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि अमृत वेला सत्संग करो अटेंड। सो अदरवाइज तो कोई भी ऐसी इनविटेशन नहीं आती सत्संग की, इट इज ऑलवेज आइदर 12 o'clock और 6 o'clock और मे बी 4 to 6। बट अमृत वेला तो फर्स्ट टाइम है इतने सालों में।
सो मैंने कहा ये तो यार जरूर गुरुजी इज ब्लेसिंग अस एंड ही वांट्स अस टू स्टार्ट डूइंग अमृत वेला सत्संग बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज जस्ट लाइक अ कैंसर इन द बॉडी. सो वी वेंट देयर. वहां पर अमेजिंग आंटी ने दरबार सजाया हुआ और रिंकू भाई जो मुंबई वाले हैं उनके शबस व्याख्या चल रही हैं. एंड यू वोंट इमेजिन संगत जी, जो व्याख्या रिंकू जी ने उस दिन मैंने सुनी, वो बिल्कुल रूबरू मेरे ही सारे मेरे ही लाइफ के ऊपर करा. सो मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर. I was called, शिल्पी आंटी ने आई थिंक 11 संडेज किए थे, तो वी यूज टू गो, हम जाते थे संडेज को 3-4 बार ही गए. और ये बात है दिसंबर 2018 की, और घर पे भी हम एवरी डे ही करते थे 3 से 6, और संडेज को शिल्पी आंटी के यहाँ जाते थे. सो क्या हुआ इसके बाद, क्या हुआ इन द मीन टाइम, वो जो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा था, ही स्टार्टेड सेंडिंग अस नोटिसेस कि आप ना आगे आगे प्रॉपर्टी की बात करो. और हमने जवाब दिया कि जी आप बात ही नहीं करते, आप अपने ही टर्म्स में कह रहे हो कि मुझे इनसे डील करनी है, उसके बाद बात करेंगे. और गुरुजी ने इसी अमृत वेला सत्संग के थ्रू हमें एक और बायर दिलवा दिया प्रॉपर्टी के लिए. और ही इमीडिएटली पेड अस ह्यूज अमाउंट, ब्रदर्स को, फादर को, मुझे. और उसने कहा कि आई विल गो हेड विद योर प्रॉपर्टी, आई रियली लाइक योर प्रॉपर्टी. ही वाज जस्ट लाइक गुरुजीज मैसेंजर और गुरुजीज सेविंग ग्रेस. एक गुरुजी ने एक बायर को खड़ा कर दिया टू रिलीव अस विद दिस प्रॉपर्टी प्रॉब्लम. और उसने क्या बायर ने कि जो पुराना आपने टोकन वोकन जिससे लिया उसको आप रफा दफा करो, वापस करो, रिफंड करो, और उसके साथ केस क्लोज करो, इन द सेंस मतलब जो नोटिस आ रहा है क्लोज करो. सो मैंने कहा ठीक है जी. सो वी स्टार्टेड गोइंग विद द न्यू बायर, और बहुत ही स्मूथली सब कुछ हो गया. हम अमृत वेला करते रहे, संडेज को जाते रहे, और समहाउ जो नोटिस वो भेजता था उसके हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो उसके लॉयर थे उसको हम जवाब देते थे. एक दिन उसने बहुत ह्यूज पब्लिक नोटिस डाल दिया जी कि दीज पीपल आर फ्रॉड, ये वो, इसके इन प्रॉपर्टी में कोई डील ना करे. सो मैं शॉक, मैंने कहा ये हो क्या रहा है. बट स्टिल वी कंटिन्यूड विद आवर ब्रह्म मुहूर्त प्रेयर्स. हम अमृत वेला डेली हम करते थे. हमने ये नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब सब किया, मार्च, बहुत रेगुलर, बहुत तप किया, बहुत पूजा की गुरुजी की, गुरुजी प्लीज आप इससे हटाइए. सो अमेजिंग 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 थिंग हैपेंड कि ही अचानक से दिसंबर में जो बायर था, ही स्टॉप्ड सेंडिंग अस नोटिसेस. बिल्कुल साइलेंस हो गई. हमने कहा हमने 1-2 नोटिस के जवाब दिए हैं, उसने हमें धमकी दी है कि मैं हाई कोर्ट में मूव करूंगा, ये बिल्कुल चुप कैसे बैठ गया, अचानक से चुप बैठ गया. और जो नया बायर था, ही वॉज वेरी हैप्पी. वो कह रहा था मैं मार्च तक आपको पूरे पेमेंट दे दूंगा और रजिस्ट्री करा लूंगा. अच्छा हुआ वो आपका सारा सॉर्ट आउट हो गया. सो वी वर वेरी कंफ्यूज्ड एंड परप्लेक्स्ड कि आपने आगे तो हेड कर लिया है न्यू बायर से, बट पुराने बायर ने नोटिस बंद कर दिया अचानक से. वो कुछ पता नहीं क्या बॉम्ब फोड़ने वाला है. बट वी वर स्टिल प्रेइंग टू गुरुजी. अच्छा, एक दिन संडे को आई वाज सिटिंग एट शिल्पी आंटी सत्संग, तो मुझे गुरुजी मैसेज में कहते हैं कि "अ, तू चिंता मत कर, उसको मैंने भगा दिया है." तो मैंने कहा क्या? उसकी उसकी वोटी आई थी इधर, यहाँ पर आई थी अमृत वेला में, उसकी वाइफ, उसको मैंने कह दिया ये मेरे खास हैं, इनको कुछ नहीं तंग करना. तो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा वो, तू टेंशन ना ले, तू टेंशन ना ले, ऐसे टेलीपैथिकली बेसिकली. सो बिटवीन दैट अमृत वेला सत्संग जब मैं शिल्पी आंटी के यहाँ अटेंड कर रहा था, तो मैंने वाइफ को कहा कि यार मुझे लग रहा है कि गुरुजी ने ये कहा है अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता वो कोई नोटिस भेजने वाला है. तो वाइफ ने कहा देखते हैं. मैंने कहा नहीं. सो शी अग्रीड, मतलब शी लिसन टू मी एंड वेट एंड वॉच पॉलिसी. सो आप मानोगे नहीं संगत जी, वो दिन गया अचानक से. गुरुजी ने लीला की, कैसे गुरुजी ने उसको रोका, स्टिल इट्स अ मिस्ट्री. एंड ही स्टॉप्ड बॉदरिंग अस. एंड मार्च में हमने नए बार से सारे पैसे ले लिए, रजिस्ट्री उसके नाम हो गई, सब हो गया, बिल्कुल क्लीन चिट. So how Guruji treated this problem in his own ways and blessed all of us, you know, it's a beautiful, beautiful, beautiful. Only God can do this miracle. Only Guruji can do it. So एक ये बहुत ही turning point आया. And 2000 this thing अभी sorry I lost it.
हाँ 19 में, मार्च में। सो उसके बाद देन ऑब्वियसली वी थॉट कि अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं। सो आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे को एक प्रॉपर्टी डीलर, एक दो डीलर को बोला मैंने, और उन्होंने बिल्कुल ही सामने आर ब्लॉक में, हमें जहाँ हम यहाँ रह रहे हैं वहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी ऑफर की। हमने कहा थर्ड बिट टेरेस हम ढूंढ रहे हैं, तो उसने इमीडिएटली हमें दिखाई, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। तो मैंने निधि को कहा कि ये प्रॉपर्टी बड़ी अमेजिंग है और यहाँ पर देखने आ। तो फर्स्ट ही प्रॉपर्टी हमने देखी थी, हमें बड़ी पसंद आई। फिर देन वी स्टार्टेड मीटिंग द बायर। तो ब्रोकर ना मुझे बायर के यहाँ मीटिंग, क्योंकि मीटिंग कैसे क्या करना है, पेमेंट वगैरह। तो जब मैं जाता था टू द बायर, आई ऑलवेज सी गुरुजीज कार्स। किसी में गुरुजी का स्टिकर है, किसी में कुछ है। तो मैंने कहा ये तो अमेजिंग लग रही है प्रॉपर्टी, गुरुजी ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि यही ले तू। तो एक दिन मैं मीटिंग में गया, बायर, सॉरी सेलर, आई मीन सेलर, जो ये बेच रहा था, सेलर की मीटिंग में गया। तो वहाँ ना वहाँ एक यज्ञ की वो आ गई, पंडित जी को यज्ञ कर रहे हैं, गायत्री मंत्र चल रहे हैं, और वो आरती हो रही है शिव जी की। तो मैंने उनको कहा, ही वॉज अ मुस्लिम, जो सेलर था जिससे हमने लिया, ही वॉज अ मुस्लिम। मैंने कहा ये सर, ये आपके यहाँ पर पूजा हो रही है? कह रहे नहीं नहीं, वो नेबर है हमारे, तो वहाँ पूजा हो रही है उनकी। तो मैंने कहा ये तो सारा ही शिव जी का जो हम करते हैं सारा चल रहा है। ही वॉज नॉट अ संगत, कुछ उनका यज्ञ चल रहा था और भगवान वो कर रहे थे। तो मैंने तो कहा ये तो पक्का गुरुजी का मैसेज है कि यही प्रॉपर्टी लेनी है, इधर उधर मत भागो। अदरवाइज हम 10 12 15 प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर खरीदते हैं। इट्स अ ह्यूज दिस डिसीजन। बट गुरुजी ने कैसे, गुरुजी ने प्रॉपर्टी दिलाई, एंड आई बॉट दिस प्रॉपर्टी इमीडिएटली। उसको सेल करके विद इन 1 मंथ गुरुजी ने प्रॉपर्टी भी दिला दी। एंड फिर यहाँ पर हमने एक ब्रह्म स्थान होता है, हर उसका ना घर का ब्रह्म स्थान होता है, सेंटर प्लेस विच शुड बी वेरी क्लीन, एंड इट शुड बी फॉर मेडिटेशन, और पूजा घर होना चाहिए। सो वी थॉट कि चलो ये एक रूम गुरुजी का ना दरबार बनाएंगे, और ये रूम मेडिटेशन रूम रखते हैं प्रेयर्स के लिए। सो जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ, सॉरी आई कुड नॉट ओपन द वीडियो। सो यहाँ पर हम यहाँ पर दरबार करके करते हैं, शिव पुराण सब पढ़ते हैं। सो यहाँ पर जब हम शिफ्ट हुए, तो द जो सेलर यूज्ड टू गिव इट फॉर रेंट। पहले ना वो रहते कभी नहीं थे, वो रेंट पे ही चढ़ाते थे। तो आई डोंट नो, हम जब स्टार्ट किया हमने यहाँ पर शिफ्टिंग, तो एक कबर्ड से लक्ष्मी गणेश सिल्वर कॉइन हमें मिलता है इसी रूम से, और कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा यार ये क्या है, सिल्वर एंड सिल्वर का लक्ष्मी गणेश का कॉइन, दिस इज वेरी शुभ, ये तो बहुत ऑस्पिशियस चीज हुई है। सो यही ऑथेंटिकेशन गुरुजी की आई कि आई विल ब्लेस यू। सो कैसे गुरुजी ने प्रॉपर्टी की हीलिंग की, जबकि हम इतने सालों से वो बेचना चाह रहे थे, वो बिक भी गया, हमने खरीद भी लिया। सो ब्यूटीफुल गुरुजी ने ब्लेसिंग्स की। उसके बाद वी डिड अमृत वेला सत्संग हेयर, बिकॉज मेरे को समझ आ गई कि अमृत वेला इज द इन थिंग फॉर मी। मे बी नॉट फॉर एवरीबडी, बट मेरे लिए तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी मुझे अमृत वेला सत्संग में। अमृत वेला इज बेसिकली 3 to 6, मे बी 4 AM कर सकते हो, 3 AM कर सकते हो, 5 AM स्नान करके यू जस्ट डू मेडिटेशन एंड सत्संग एंड शब्द्स। सो वो मैं करने लगा। वी डिड एट आवर प्लेस 15-20 संगत आते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर द लॉकडाउन 2019. So last we did for I think 10 times. July 7th गुरुजी का बर्थडे हमने अमृत वेला में मनाया 2019 में। एंड समहाउ फिर उसके बाद वो गुरुजी ने वही पॉज जैसे करते हैं ना, पॉज हो गया। देन वी डिडंट डू द नेक्स्ट संडेज, और मे बी द क्योंकि मेरे को ना फिर जुलाई आई थिंक 28 7 जुलाई वाज द लास्ट सत्संग वी डिड बर्थडे वाले दिन गुरुजी के। 28 जुलाई I had very very bad severe pain in my stomach. सो मैंने निधि को कहा कि ये तो बड़ी अनबेरेबल पेन है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू मी। अनबेरेबल पेन 2 दिन कंसेक्यूटिव चली, 5-5 बजे सुबह। एंड देन आई रश टू द डॉक्टर। डॉक्टर टोल्ड मी कि आप ना एक अल्ट्रासाउंड कराओ। सो अल्ट्रासाउंड में मेरे आया कि राइट यूरिनरी ट्रैक्ट में 9 mm का स्टोन इज स्टक अप, एंड दैट इज पेनिंग मी। सो फिर
उन्होंने कहा देखो ये इतना ह्यूज साइज है 9 mm, बिलो 5 तो मैनेजेबल है, वो तो पानी वगैरह पी के यूरिन से ही निकल जाते हैं स्टोन्स किडनी के, तो ये तो आपकी वो होगी लेप्रोस्कोपी होगी, इट्स अ वेरी स्मॉल टाइनी ऑपरेशन, सो आप कोई टेंशन मत लो, आपका निकल जाएगा स्टोन। सो आई वाज वेरी स्केयर्ड एंड वेरी अपसेट। तो मैं तो बड़ा अपसेट हो गया क्योंकि आई एम दैट गाय वेरी फिट एंड वेरी हेल्दी, मैं तो इंजेक्शन भी कभी नहीं लगवाता और आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ नीडल्स एंड डॉक्टर्स, मैं तो कभी गया ही नहीं क्लिनिक्स एंड डॉक्टर्स। तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में मेरे को अभी 2019 में ये किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हुई, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द अमृतवेला सत्संग। सो आई वाज मोर अपसेट गुरुजी से। तो मैंने गुरुजी को बस ऐसे ही, होता नहीं है नादानी में, ईगो में, गुस्से में, मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आपने ये क्या कर दिया, आपको तो पता है कि आई एम नॉट फिट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मैं कितना मैं डरता हूँ, कैसे मुश्किल से मैं हॉस्पिटल भी जाता हूँ, तो आपने ये क्या कर दिया, अभी तो हमने अभी अमृत वेला किया था। सो गुरुजी मेरे को कैसे टेलीपैथिकली कॉन्फिडेंस देते हैं, मुझे कहते हैं गुरुजी कि बेटा देख, ये तो तेरे को बड़ी प्रॉब्लम पहले आनी थी और पहले ही तेरा ऑपरेशन होना था, बट तेरा टाइम इतना खराब था, तू इतनी प्रॉब्लम में था, ये घर को लेके टेंशन में था कि दैट वाज नॉट द राइट टाइम कि मैं तेरा ऑपरेट कराऊं। सो नाउ अभी तेरे को ऑपरेट कराना पड़ेगा, बी प्रिपेयर्ड, और मैं तेरे साथ हूँ, यू मस्ट गो हेड विद द ऑपरेशन। सो मैंने कहा यार, मैं फिर मेंटली शांत हो गया, मैंने कहा नहीं ये तो गुरुजी का मैसेज आया है एंड वो तो कराना पड़ेगा, ऐसे ट्रीटमेंट से नहीं जाएगा। एज डॉक्टर सेड कि आपको कराना पड़ेगा 9 mm स्टोन, ऐसे नहीं जाएगा कितना भी आप ट्राई कर लो। सो देन फिक्स हुई डेट 12 अगस्त की ऑपरेशन की, एंड देन आई वाज एडमिटेड विद वेरी वेरी हैवी हार्ट, और बहुत ही मुझे इंजेक्शन लगने लग गए और ये सब। तो वाइफ भी मेरी कहती है यार यू आर बिहेविंग लाइक अ किड, यार ये क्या हो गया तुम्हें। मैंने कहा नहीं यार आई एम टू मच, स्टार्टेड क्राइंग, एंड मैंने कहा कि ये तो बड़ी कहाँ फंस गए गुरुजी। बट वही सरेंडर, मैंने कहा चलो अब तो छोड़ दो, अब तो डॉक्टर को सरेंडर करो, अब तो गुरुजी ने कहा है कराना पड़ेगा तो कराते हैं। सो अमेजिंग थिंग हैपेंड। 12 अगस्त को मेरा ऑपरेशन था सुबह, तो एक दिन पहले ऑब्वियसली एडमिट होना पड़ता है फॉर द टेस्ट एंड एवरीथिंग। तो उस रात 11 अगस्त की रात को मेरे को मेरे को गुरुजी ले जाते हैं अपने शिवलोक। आई एम स्लीपिंग, मेरे को ये ड्रीम आता है, पहले तो मुझे लगा मैं मर गया था, ड्रीम आता है गुरुजी ने मेरा बाँह पकड़ा हुआ है और गुरुजी ना मेरे को, मैं देखता हूँ कि एक टोटली वाइट वाइट प्लेस है, आश्रम है, गुरुजी की गद्दी है, लाइक इट्स अ हेवी स्टोन। गुरुजी की गद्दी एक स्टोन है बहुत ह्यूज, और वाइट वाइट में सब संगत लगी हुई है, जैसे एम्पायर स्टेट में बैठते थे सारे चौकड़ी मार के वो, बट वो बॉडीज नहीं है, वो दैट इज अ वाइट फॉर्म, दैट इज अ वाइट, जैसे 4-4 फुट के ना वाइट शिवलिंग टाइप लगा लो, संगत इज इन वाइट, इट्स नॉट अ बॉडी। तो वो एस्ट्रल बॉडीज हैं और गुरुजी का स्टोन है, और गुरुजी कह रहे हैं देख देख मेरा आश्रम देख। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो सारा वाइट है, गुरुजी आप भी वाइट, मैं भी वाइट, संगत भी वाइट, ये तो गुरुजी ये आपका आश्रम है। गुरुजी कहते हैं देख देख मेरा आश्रम देखना। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, मैं मर चुका हूँ गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू देख तो सही। तो गुरुजी ने बस यही मेरे को कहा कि तू देख मेरा आश्रम देख। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, एवरीथिंग वाज वाइट, इट वाज एंजल, और इतना मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा मैं मर चुका हूँ और गुरुजी मुझे अपने आश्रम में ले गए हैं। तो फिर मेरी नींद खुल गई सुबह, आई वाज शॉक्ड, मैं डीप स्लीप में था बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन। सुबह खुला तो मैंने कहा अरे मैं कहाँ से आया हूँ। आई वाज वेरी पॉजिटिव, मैं अंदर आराम से वहाँ गया ऑपरेशन थिएटर में, आई वाज वेरी पॉजिटिव बिकॉज उसी मेसमराइजिंग फीलिंग से मैं अंदर गया बड़ा कॉन्फिडेंट। तो निधि ने कहा यार ये तो बड़ा पॉजिटिव चेंज है। मैंने कहा नहीं नहीं सब ठीक है गुरुजी है ना साथ। मैंने ड्रीम शेयर नहीं किया उस टाइम बिकॉज मेरे को अभी समझ नहीं आई कि हुआ क्या है, मैं मर के आया हूँ या क्या हुआ है, मतलब बहुत ही डीप पावरफुल वो था गुरुजी का वो सीक्वेंस। सो अंदर मैं गया, वो लिटा देते हैं जी आपको पता है ऑपरेशन थिएटर में, और वो उन्होंने वो स्पाइन में इंजेक्शन लगाया और मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस, ऑब्वियसली होना ही था बिकॉज दे हैड टू ऑपरेट।
उसमें भी गुरुजी मेरे को टेलीपैथिकली जब ऑपरेशन हो रहा है तो मेरे को आया कि गुरुजी इज वॉकिंग, जो एम्पायर स्टेट में वॉक करते थे ना गुरुजी, बड़े स्टाइल में ऑपरेशन थिएटर में वॉक कर रहे हैं और कह रहे हैं डॉक्टर को, और छेती छेती करी, मेरा खास संगत है, फटाफट कर, ठीक कर। ऐसे गुरुजी ने उसको बड़े स्टाइल से बोला। फिर ऑपरेशन खत्म हुआ, मैं आया बाहर, तो ऑन द मीन टाइम डॉक्टर टोल्ड कि वेरी पॉजिटिव पर्सन, और ये तो हंस रहे थे अंदर, और ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ है, दो इट वाज अ स्मॉल थिंग बट ही इज वेरी कोऑपरेटिव, नेवर सीन सच पॉजिटिव वाइब्स। सो निधि भी शॉक्ड की हो क्या रहा है, ये ऑपरेशन हो रहा है कि ये क्या हो रहा है सब। तो आया वापस, देन आई टोल्ड हर कि यार ये तो गुरुजी ने कमाल कर दिया, ये मैंने फिर ड्रीम बताया एंड देन ऑपरेशन थिएटर का बताया। सो देन वी केम बैक, अल्टीमेटली एवरीथिंग वेंट बाय, बहुत अमेजिंग हो गया, अगस्त में ऑपरेशन हो गया। और बस यही मैं अपसेट था गुरुजी से, एक दिन एक की 27 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है, तो गुरुजी ने उसी मंथ बर्थडे क्या मनाना, वो तो मैं ऑपरेशन के उस चक्कर में ट्रीटमेंट में था, क्योंकि एक महीना वो एंड वो चलती है एंटीबायोटिक्स। सो एनीवे दैट वाज बिफोर हैविंग अ ड्रीम विद गुरुजी। मैं वैसे ही मनोमन कहता था कि जी अगस्त में आपने वो करा दिया है, मैं तो आई एम वेरी फाउंड ऑफ अगस्त मंथ, मैं तो बहुत जाता था मंदिर, पूरे वीक ही जाता था, 20 अगस्त से 27 हर साल बड़ा अमेजिंग गुरुजी मनाते थे, तो इस साल क्या हुआ है। सो मैंने काफ़ी गुरुजी को कहा था पहले, बट जब ड्रीम आया और जब ऑपरेशन थिएटर में हुआ तो मैं तो समझ गया कि भाई गुरुजी तो बड़े गॉड हैं, अमेजिंग है गुरुजी, तो कुछ भी जो भी कर रहे हैं सरेंडर करके चलो, माइंड वाइंड कुछ मत लगाओ। तो वो उससे मेरे को काफ़ी अवेकनिंग हुई। and then ultimately then मार्च में लॉकडाउन हो गया 2020 में, और लॉकडाउन में फिर गुरुजी ने इंट्रोड्यूस करवाया, ग्रुप बन गए अमृत वेला के, वहाँ पर अमृत वेला अटेंड करना लगा, एंड बहुत ही ब्लेस किया गुरुजी ने। फिर एक आंटी ने मेरे को कहा लास्ट ईयर 25 अगस्त को अभी जो बीता है कि जी आप सत्संग करिए, जैसे आज धीरजा आंटी ने इनवाइट किया है। सो उन्होंने कहा आप करिए सत्संग। तो मैंने कहा आंटी डेट, उन्होंने कहा 25 अगस्त। मैंने कहा आंटी मेरा तो 27 अगस्त को बर्थडे होता है। तो कहते हैं नहीं 27 को तो वो हम करते ही नहीं, तो एनीवे इफ यू वांट वी कैन डू स्टार्ट ऑन 27। मैंने कहा नहीं नहीं 25, एक्चुअली 25 अगस्त को मेरी मदर का बर्थडे होता है। तो मैंने वो 25 अगस्त को फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में मैंने, गुरुजी ने मेरे को वो एक बख्शा, सत्संग करा मैंने। और मैंने देन मेरे को गुरुजी ने रियलाइज कराया कि लास्ट ईयर मैं तुझे हॉस्पिटल में किया था और इस साल देख मैंने तुझे गिफ्ट दी है कि तू सत्संग शेयर कर रहा है सबके साथ। सो सच फिर ब्यूटीफुल गिफ्ट। एंड आप एक अमेजिंग चीज हुई सेम डे, बिकॉज वी वर रीडिंग शिव पुराण ऑन एट अमृत वेला इन अ ग्रुप। सो सेम दिन 25 अगस्त को अमृत वेला वाले दिन शिव पुराण के अध्याय में मेरे सारे फैमिली मेंबर्स का नाम मेंशन हुआ। मेरी मदर का नाम जैसे अध्याय में आया, एक अध्याय में आया कि वीना इज माय मदर्स नेम, तो वीना आया। देन विशाल, भरत, वंदना, ये सारे मेरे ब्रदर सिस्टर हैं रियल। और उस अध्याय में 25 अगस्त जिस दिन मैंने ये सेवा थी वो हुई। तो कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, ये बड़े यूनिक और बड़े डिफरेंट वेज हैं। हमें मतलब बस कनेक्ट करने वाली बात होती है कि कैसे गुरुजी से हम कनेक्ट करें, बट मतलब वी हैव टू बी वेरी ओपन विद टू रिसीव हिज मैसेजेस। सो ऐसे गुरुजी बड़े यूनिक वे में ब्लेस करते हैं संगत को। ड्रीम्स में शिव पुराण के अध्याय में कुछ ब्लेसिंग्स आ जाएगी, कुछ अमृत वेला में आपको कोई मैसेजेस आ जाएंगे। सो ब्यूटिफुल, ही इज लाइक अमेजिंग। सो ऐसे हुआ। सो ये मेरे को ब्लेसिंग मिली 25 अगस्त को। एंड सो नाउ अच्छा, अब नाउ ऑलमोस्ट आई एम एंड विद माय सत्संग। आई जस्ट वुड लाइक टू शेयर कि जो संगत जी शिव पुराण है ना, अभी हमारा प्लेटफॉर्म में शिव पुराण का चल रहा है रीडिंग। सो इसमें इतनी महिमा है, मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं शिव पुराण के, आई वुड लाइक टू शेयर कि जब शिव पुराण जैसे मैंने कहा कि मदर का बर्थडे है और उसी दिन ही शिव पुराण के अध्याय में
मदर का नाम और फैमिली मेंबर्स का नाम आता है और गुरु जी सेवा देते हैं। सो ऐसे ही बहुत बारी मैंने देखा है कि शिव पुराण जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ की रिलेटेड एक्टिविटीज जो हो रही हैं उसी के रिलेटेड अध्याय में कुछ मैसेजेस आ जाएंगे। सो बहुत ही अमेजिंग मतलब ट्रेजर्स हैं शिव पुराण में, जेम्स हैं जो हमें हमें पढ़ना चाहिए। और अभी रिसेंटली बड़े मंदिर में अभी जैसे कूपन सिस्टम हुआ है, सो वो ऑनलाइन है, तो अचानक से मुझे कर नहीं पाया ऑनलाइन बुकिंग, तो आई टोल्ड वन संगत तो आप जब खुले तो आप कर देना। तो उनका फोन आता है जी कि आपकी ना 1 जैन की बड़े मंदिर की वो हो गई है बुकिंग। मैंने कहा ये तो 1 जैन को तो कभी मतलब हो ही नहीं पाता था, तो कैसे हो गया? तो दिस इज द वे गुरुजी ब्लेस अस रैंडमली, सो अमेजिंग है। एंड एक और छोटा सा सत्संग है रिसेंटली का कि अभी कुछ माय वाइफ वाज वेरी अपसेट, कुछ ना हमने जहाँ ये अभी लिया तो पार्किंग इशू चल रहा था, पार्किंग का ना, वो कोई कह रहा था कि जी आप यहाँ गाड़ी मत लगाओ वहाँ लगाओ, ऐसे करके ना कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा था। दे वर सेइंग कि ऐसे ऐसे करके लगाएंगे गाड़ी। सो यू वोंट इमेजिन कि उसने गाड़ी लगाना शुरू की थोड़ा सा हमारे साथ करके, एंड जो नेबर्स हैं हमारे लेफ्ट राइट में, उनके साथ उसका कुछ प्रॉब्लम हो गई। ऐसी प्रॉब्लम हुई कि ही स्टॉप पुटिंग हिज कार, एंड जो हमारी जो एंजाइटी थी वाइफ की मेरी, बड़ी 2-3 महीने बड़े खराब निकले, बिकॉज हमने कहा कि हमने प्रॉपर्टी ली है और पार्किंग का बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है। सो गुरुजी ने क्या लीला की कि सीइंग आवर पेन, उन्होंने गुरुजी ने क्या वो उसके साथ किया कि वो नेबर्स की आपस में उनकी लड़ाई हो गई और अब कोई आता ही नहीं हमारे अलावा, कोई पार्क ही नहीं करता वहाँ उस एरिया में, बिकॉज आपस की उनकी कुछ लड़ाइयाँ हो गई हैं। और गुरुजी ने मतलब विदाउट गेटिंग इनटू एनी कोर्ट नोटिसेस और एनीथिंग, गुरुजी ने अपनी लीला से ही उसकी ट्रीटमेंट कर दी, हील कर दी पार्किंग इशू। So these are small satsangs, like I mean they are big satsangs, but कैसे मतलब हर चीज का गुरुजी को है कि मेरे भक्तों को साथ में सब ठीक चले। एंड एक ब्यूटीफुल चीज मैंने अभी रियलाइज की, सरेंडरिंग की, वेरी इंपॉर्टेंट। इतने सालों से मैं जा रहा हूँ, बट जो सरेंडर होता है ना, सरेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेरे को एक आई वाज हैविंग सम प्रॉब्लम, तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी देखो ये प्रॉब्लम का हल मेरे पास नहीं है, अब मैं ये प्रॉब्लम आपको अर्पण करता हूँ और आपको मैं सरेंडर करता हूँ। आई कंप्लीटली सरेंडर टू यू एंड बाउ डाउन कि ये आप इसको कैसे मैनेज करना है, मुझे डायरेक्शंस दो, मेरे को अवेकन करो, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रही, मेरे सारे एफर्ट्स नील हो चुके हैं, आई एम नॉट getting anywhere, so I totally surrender to you. The moment I said this dialogue with Guruji अरदास की, I felt so light, I felt so light। और उस दिन के बाद अभी रिसेंटली 15-20 दिन की बात है ओनली, और उस दिन के बाद 15-20 दिन से आई एम गेटिंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टुवर्ड्स दैट थिंग। जैसे कहते हैं ना कि अब तो आपको ने ही ये काम चलाना है, ये तो आपने ही करना है। तो जब गुरुजी को हम कह देते हैं, एक तो होता है हम बिलीव कर रहे हैं कि गुरुजी कर रहे हैं, कहते हैं अरदास करते हैं और कॉन्शियसली सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि अब आपने ही करना है, तो तब गुरुजी अपने हिसाब से कैसे अबंडेंस में काम होता है और हमें पकड़ के लेके जाते हैं कि तूने ये कैसे करना है, ये ऐसे करना, स्टेप बाय स्टेप गुरुजी करवाते हैं। So this is the beauty. Every day is a learning, phase. Every time we learn, we get to know more about Guruji in his magical ways. और अब शिव पुराण से गुरुजी ने मतलब अब फिश कर रहे हैं सब लोग कि हमें अब सैल्वेशन और मोक्ष की तरफ जाना चाहिए। सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड टू डू, कैसे कर्मा करने चाहिए, चैरिटी एंड सो मेनी थिंग्स। सो नाउ वी आर लर्निंग दैट। So this is a beautiful journey. I'm thankful to Guruji for making me and changing me, reforming me from a way back जैसे person था कलयुग में जैसे होते हैं लोग, with my thoughts and activities now transform me to a different person. It's a journey. So it is a beautiful journey. मैं तो यही अरदास करता हूँ कि सब लोग दिल से शिव पुराण पढ़ें, दिल से सब करें और कैसे सरेंडर करते हुए गुरुजी ब्लेस करते हैं। So I think auntie I'm done with my journey till date, and thank you. आप thank you so much. Over to you, Girja auntie.